from serving as a brigadier general to becoming a director general and now been honored as adjutant. So I just want to tell you about this. He has asked a very important question. How do you feel that after becoming a brigadier, you become a director general? Now you have been awarded with the post, with the degree of the doctorate of philosophy. I want to tell you one thing. You see, the life is an unending process of growth. Every day you add a little value to your life. Divide your life in various domains. Be it a physical domain, where your physical health should be improving by each day. The second important aspect is the mental domain or the academic domain. Every day you must add knowledge to your life. The third important aspect is the emotional domain or social domain. You must take care of your emotional health. All those relationships, all those things which bother you emotionally, वो जिंदगी से चली जानी चाहिए. Similarly, the spiritual domain, do things rightly. What I'm trying to tell you through this is, I may be a brigadier general, today I'm a director general. I have lived my life by growing each day. I joined army. Before the army, I was just MSc Physics with electronics as a specialization. In 1988, I cleared GATE examination and I got selected for GATE and I was to go for MTech in IIT Delhi. But in the same time, the army happened to me. And since I was a sports person, I played national football, I joined army. And then in army, I got a chance to do BTech in electronics. I did BTech. Then army, I was selected for doing management course, so I did MBA. And when I was completing my army time, I decided to join education. This happened in 2017-2018. 2017-18, I wrote a paper on emotional intelligence and the military leadership. That paper was highly appreciated. And somebody says, why don't you join PhD program? So in 2018, I applied for a PhD vacancy. In 2021, I got a chance to present my synopsis. I decided to write my thesis on maritime security. And 21 to 24, 3 years I was working on this. And that was the time I was posted in Port Blair, Andaman Nicobar Command. So there, maritime was the main threat. So we worked on that. And last year, I decided to join IITM because I come from army. Army is all about service to the nation. Then I wanted to serve the nation builders of tomorrow. वो लोग जो कल नेशन बनाने में रहेंगे, वो आज की युवा पीढ़ी है. So I decided to be part of the process, which is developing students who will be part of the nation building. And I selected education as my second career, and I joined here. And I'm very glad, I'm very blessed to have wonderful students like you around me. And as I see some of you want to learn something from me, to learn a lot of hard work, and more than the hard work, it is the discipline which you can learn from me. Discipline is nothing. आपको मालूम है ये काम करना है, अगर आप उस काम को कर सकते हो, that is the discipline. If you know early getting up is good for you, and if you're doing it, it is discipline. If you know studying is good for you, and if you're studying, it is discipline. If you know not eating this is good for me, and you're not eating it, that is discipline. वो काम जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अपनी गंदी आदतों की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनसे बाहर निकलना ही डिसिप्लिन. तो आज हम सब लोग यहाँ एक प्रण जरूर लेंगे कि अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को अगर लेके आना है तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. अब कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारे अंदर तो हमें मालूम है ना हम क्या कर रहे हैं. उसकी आंखों से अपने रूटीन को देखना है और एक ऐसा रूटीन अपनाना है जो हम चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम फिट हों, हम ये भी चाहते हैं कि हम क्लास में हमें सब कुछ मालूम हो, तैयारी करके जाएं,
हमें ये भी मालूम है कि अगर हम अच्छा रिजल्ट करना है तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, टाइमली ज़रूरी है, सेशन अच्छे देने हैं, क्लासेस बंक नहीं करनी है, तो वो सारे काम हम करेंगे। मस्ती भी मारनी है तो वो भी डिसाइडेड वे में हो कि आज स्पोर्ट्स खेलना है तो अभी खेलें। माई ओनली पॉइंट इज मेक द सेल्फ डिसिप्लिन विच आई मेड। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हाउ डू यू फील? आई हैव बीन ग्रोइंग, आई हैव बीन डेवलपिंग गुड हैबिट्स। आई रन इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई ऑल्सो डू, ये लोग जाते हैं ना मसल बिल्डिंग के लिए, मैं भी बनाता हूँ बॉडी। So बॉडी बनाने का टाइम होता था, आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। आई प्ले गॉल्फ, आई प्ले गॉल्फ वेरी पैशनेटली। बट जब पढ़ाई का टाइम आता है तो आई रीड अ लॉट। यू नॉट बिलीव, डे बिफोर आई read for 5 hours continuously. I was reading something on the net. बट आप लोगों को मुझे लगता है कि if I want my students to read for 5 or 6 hours, why can't I do? And this is the Saturday. My wife was also telling me, but then you see, it gives me, if I know something, it gives me an added pride in my profession of being an education. So I'm enjoying a lot. From beginner journal to director journal to the doctorate, I'm enjoying this process of growing, and I want all of you to learn from this whatever I told you. ठीक है? Thank you. Thank you very much. हाँ जी बताइए, लंबा सा जवाब आंसर देता हूँ मैं। हाँ। So I want to ask you that what message would you like to give to the younger generation about your inspiring journey? I have already given that partly. I just want to give you one message for you. The success in life is guaranteed. जिंदगी में तरक्की, सक्सेस झक मार के आएगी, 100% आएगी। रास्ता सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन का है। सेल्फ डिसिप्लिन with a good set of habits is the only way you can get success. I was sharing one thing with my faculties. I will share that with you as well. You see, how many of you know the subconscious mind? हमने वो एक सबकॉन्शियस माइंड मालूम है ना, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो लॉजिकल है, जो सोच रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो शांत रहता है। जब आप सो रहे होते हो तब भी वो काम कर रहा होता है। अभी आपने हाथ, अभी मेरे माइंड ने बोला हाथ खड़ा करना है तो मैं हाथ खड़ा करता हूँ। माइंड ने बोला कि इसको मारना है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। दिस माइंड इज टेलिंग। बट जब मैं सो जाता हूँ तब भी मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो काम कर रहा है, मेरे लंग्स भी काम कर रहे हैं, मेरी किडनी भी काम कर रही है, हार्ट भी काम कर रहा है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में है ना जो कर रहा है। इट इज अ सबकॉन्शियस माइंड विच इज रनिंग ऑन लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ है जो आप अपने मन में सोचते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रजिस्टर हो जाता है। ओके? अगर आप कहते हैं यार ये मेरे से नहीं होने वाला, सबकॉन्शियस माइंड उसको कंप्यूटर की तरफ पकड़ लेता है। अब उसने पढ़ लिया कि इस बंदे ने बोला ये मेरे से काम नहीं होगा। अंग्रेजी बोलनी मुझे नहीं आती है तो मैं तो नहीं बोल पाऊँगा। स्टेज पे खड़ा होकर मेरे को बात नहीं करनी आती तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो सारी बातें आप अपने आप से करते हैं ना, तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और वो शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है ना एक मूवी में कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए एग्जैक्टली कायनात इज द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो वो दिमाग में आएगी और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहेगी। कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में ज़मीन आसमान एक कर देती है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, हैव दिस थॉट, लेस दिस थॉट, इस थॉट को इमोशन से मिलाइए। अकेला थॉट काम नहीं करता है। अकेला थॉट होता तो सबकी 9 CGPA आ जाती है ना, कि भाई मेरी 9 CGPA चाहिए, मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, हमारी फैकल्टीज़ को अच्छी तनख्वाहें चाहिए। बट ये सोचते ज़रूर हैं लेकिन उसमें थॉट नहीं आता है, थॉट में इमोशन नहीं आता है। ब्लेंड योर थॉट विद एन इमोशन। इमोशन इज एनीथिंग। अपने किसी पेरेंट्स को प्राइड करना है, रिजवान साहब को प्राइड फील कराना है। I will ensure my CGPA is this so that Rijwan Saab feels very nice about me. So what you're doing, you're adding to your thought a emotion of pride. It can be jealousy, it can be hatred, any emotion you pick. उसको दिखाना है इस बात। उसने मेरा बेइज्जती किया
उसको मैं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि तूने मेरे को ऐसा बोला, आई विल शो इट टू यू व्हाट आई एम. सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. सो ब्लेंड योर थॉट विद एन इमोशन. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हैव एन अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल बिलीफ. जो कहते हैं ना फेथ, फेथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वास. थॉट ब्लेंड विद इमोशन, एड द वैल्यू ऑफ फेथ, विश्वास. अल्लाह का विश्वास करना, अल्लाह का विश्वास करेंगे. भगवान का करना, भगवान का करेंगे. किसी का भी विश्वास होगा कि वो हमारे साथ है इस काम में हमारे. ये तीनों चीज़ें मिल जाती है ना, वो कायनात बन जाती है और जो भी चाहते हैं वो हो जाता है. तो दिस इज माई मैसेज टू यू. हैव ए ग्रेट सबकॉन्शियस थॉट अबाउट योरसेल्फ. जस्ट टेल इट, आई विल डू इट. ब्लेंड द ब्लडी इमोशन विद इट. ब्लेंड विद लॉट ऑफ इमेंस अनशेकेबल फेथ इन इट. इट हैपन. आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी. अभी एक बंदे को यूएस में मार दिया किर्क. Yes, sir. किर्क साहब को, वो उसके दोस्त हैं किसके? ट्रम्प के. ट्रम्प का सपोर्टर था, ट्रम्प की टीम में था. उसको एक बंदे ने गोली मार दी. हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? Yes, sir. पता ही नहीं है किसी को. I know, sir. You know it, ना? Yes, sir. So ट्रम्प का एड को एक गोली मार दिया गया और वो कहीं यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में था और गोली मार दी. जब उसके बंदे से पूछा जिसने मारा, वो पकड़ा गया. उसने 1 साल पहले इस आदमी ने उसकी कहीं बेइज्जती की. ही वॉज इंसल्टेड इन सम प्रोग्राम बाई कर्सा. ही डिसाइडेड कि भाई इसको मारना है. 1 साल प्लानिंग की. भगत सिंह साहब ने यही किया. मारना था, मार दिया. माई ओनली पॉइंट इज, मैं आपको नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वो इसलिए कि बिकॉज किसी भी डायरेक्शन में ये बात चलती है. आप अगर एक बार डिसाइड कर लेना और घुस जाए उसके अंदर, कोई चांस ही नहीं है कि आप पास हो. ये जो दोनों टांगे हैं ना, टूटी हुई हैं. ये राइट लेग वॉज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट एंड लेफ्ट इज ब्रोकन इन एन फुटबॉल इंजरी. दिस हैपेंड इन 94. 95 I got married. 98 I was posted in National Security Guards. NSG का नाम कितने लोगों ने सुना? NSG is Black Cat Commandos. जो काली जानवी पहनते हैं वो लोग होते हैं. उसमें आपको पोस्टिंग जब आती है तो आपको 54 दिन के लिए प्रोबेशन होता है. आपको टेस्ट क्लियर करने में, फिजिकल टेस्ट. मेरे एक्सीडेंट को सिर्फ 3 साल हुए. मेरे पैर बहुत वीक थे, बट आई हैव डिसाइडेड आई विल क्लियर दिस एग्जाम. द कमांडो टेस्ट मैं पक्का क्लियर करूँगा. उसके बाद भी माई सन वॉज वेरी यंग दैट टाइम. माई वाइफ वॉज ऑल्सो टेलिंग इसको मना कर दो, आपके पैर बिल्कुल ठीक नहीं है. बट मैंने कहा आई टेक दिस चैलेंज. 54 days मैं बहुत परेशान रहा. 20 किलोमीटर की वॉक थी, रन थी, फायरिंग था, मंकी रोप, कितने क्या क्या टेस्ट होते हैं उनके, मतलब आदमी का बंदर बना देते. And I was grilled that I cleared that test. So my only point is, because I decided to prove myself, I decided that I will not go from energy by getting rejected. So that is the only message. If you decide, blend it with an emotion, add value, add faith, and you do it. How do you feel about the celebrations ceremony today? Oh, I love it. I never expected this. This will be so lovely, and this is something very, very nice of all of you to think about. Convey my gratitude and my regards to Rizwan Bhai, who thought of it. He gave me a call in the morning, so मुझे बड़ा अच्छा लगा. And more importantly, give me a chance to interact with you, give me a point. Actually, आप लोगों की classes लगती है, मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा बातें करनी चाहिए आप लोगों के साथ, सभी के साथ. But then I get restricted because you guys are all into. But then it gave me an opportunity to interact with you. Take these words from me, जो मैंने आपको बोला ना. Most importantly is the power of that mind of yours, कि मैंने ये काम करना है, तो हो जाता है. कायनात जुट जाती है अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं. और जो कायनात वाला फंडामेंटल मैंने बताया, थॉट, इमोशन एंड द प्रेयर एंड द फेथ मेक्स द कायनात. That's all I have to say. Thank you very much. हो गया भाई? Congratulations, sir. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी, अभी क्या है?